میں سمجھتی رہتی ہیں, اور ہم کہاں ہو سکتے ہیں کہ ہم ان کو جو ہے وہ ہم ان کو کوئی بھی بات کر کے چلا دیتے ہیں, بیوقوف بنا لیتے ہیں. نہیں امی ہم ادھر جا رہے ہیں, ادھر سے ابھی 1 منٹ میں پہنچیں گے. اچھا اگر ماں ویٹ کر رہی ہیں کھانے کے اوپر تو ہم کہتے ہیں نہیں آپ کھانا کھا لیں, ہم پہنچ جائیں گے آرام سے, آپ اپنا آرام سے کھانا نہ کھا لیں. حالانکہ ماں رات تک ہمارا انتظار کر رہی ہوتی ہے. ہم یہ چیز سوچتے ہی نہیں ہیں. کیوں یاسر ایسا ہوتا ہے؟ امی کو کہتے ہو کہ میں آپ کھانا کھا لیں, آپ کیوں انتظار کرتی ہیں؟ کیونکہ مجھے بھی بریک پہ پتہ چلتا ہے کہ یاسر یہی بات اکثر اپنی ماما کو کہتے ہیں. جی ہاں, یہی کامن بات ہے میری. ہاں کہ میں کہتا ہوں آپ آرام سے مطلب ریسٹ کریں, آپ آرام. میں تم ماما کا خیال کر رہے ہوتے ہو. جی بہت. کیونکہ میرا ایک بات تو بہت بلیو ہے, وہ یہ کہ جس نے ماں کی بہت خدمت کی وہ بندہ بہت اونچا جائے گا, بہت زیادہ اونچا جائے گا. کیسے لگتا ہے یاسر ماما کیوں بیسٹ ہیں؟ کیونکہ ماں ایک احساس کا نام ہوتا ہے, ایک ایسا احساس کہ جس کی جگہ پہلی بات تو کوئی نہیں لے سکتا. اور جیسا آپ نے کہا کہ جب بچہ بول نہیں سکتا تو اس وقت بھی ماں سمجھ جاتی ہے. جیسے ہم جب ہماری وہ ایج تھی جب ہم بول نہیں سکتے تھے تو ہماری ماں سمجھتی تھی اس بات کو, مطلب سمجھتی ہیں ابھی بھی, اور انشاءاللہ زندگی بھر سمجھیں گے. اچھا, ہماری دعائیں ہمیشہ, بلکہ میں تو بہت زیادہ خوش نصیب سمجھوں گا اپنے آپ کو کہ میرے پاس ایک ایسی امی ہے جو کہ اتنی کیئرنگ, اتنی لونگ ہے. کیسے لگتا ہے کیوں جیسے ہر ایک بچے کی فیلنگ ہوتی ہے کہ میری ماں سب سے بیسٹ ہے, تو کیسے ڈیفائن کرو گے کہ کیوں تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تمہاری ماں سب سے بیسٹ ہے؟ سب سے بڑا فیکٹ تو یہ ہے کہ ہم چاہ کر بھی جسے کہتے ہیں نا دوست یار یا ابو سے بھی کبھی کبھی جھوٹ بول جاتا ہے, لیکن ماں سے کبھی نہیں بول پاتا. امی سے جھوٹ بولتے ہو؟ نہیں, میری کبھی ہمت ہی نہیں ہو پائی ایسا ہی. جو بات ہے میں نے بالکل دوستوں کی طرح شیئر کی ہے, اور ہر بات اپنی زندگی کی اپنی امی سے میں نے شیئر. اچھا, ویسے کہتے ہیں ایسا کہ ماؤں کے جو سب سے بیٹے جو ہوتے ہیں وہ ماؤں سے کلوز ہوتے ہیں, اور بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ باپ سے کلوز ہوتی ہیں. ایسا ہوتا ہے؟ میرے ساتھ 2 بیٹیاں بھی موجود ہیں, میں ان سے ذرا پوچھوں گی کہ کیا ایسا ہوتا ہے یا ماما زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ ایسا تو ہوتا ہے, ماں تو ہے ہی امپورٹنٹ, وہ دنیا کے باہر ہنستی ہے اس کا تو کوئی نہیں, وہ بدل ہے ہی نہیں. بالکل. اپنے ورڈ میں وہ ڈیفائن ہی نہیں کر سکتی ان کی کوالٹیز ہے. میری مدر کیا کوالٹیز ہے بتاؤ. کہ ایک تو یہ میں باہر ہوتی ہوں انسٹیٹیوٹ میں یا یونیورسٹی میں, تو فورن سے کال کرتی ہے اتنی لیٹ ہو گئی کب آؤ گی, اور میں ویٹ کر رہی ہوں کھانے پر لنچ پر, اور وہ میں دل بھی نہیں چاہ رہا ہوتا, صبح جلدی بریک فاسٹ بھی نہیں کرنا ہوتا, بھاگنا ہوتا, بس انسٹیٹیوٹ جانا ہے یونیورسٹی جانا ہے, تو پیچھے پیچھے لے کر بھاگ کے نہیں کھا لو تھوڑا سا چکتے لو. بالکل. لیکن ان کو مجھے لگتا ہے کہ اور زیادہ تر فوکس ہوتا ہے کھانے کے اوپر ہوتا ہے. کھانے پر ہی ہوتا ہے, لیکن نہیں کھا لو تھوڑا سا چک لو, پھر میں بھی نہیں کھاؤں گی. کو یہ بات پتا ہوتی ہے نا کہ بچے کھاتے نہیں جانے کے بعد. ہاں نا, آپ کو نہیں پتا سموسے چاٹ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے وہاں پہ, یہ صرف کہنے والے کھاتے ہیں. بھائی میں بھی اگر گھر جاتی ہوں تو میرے اما ابا ڈیڈی بھی اور امی بھی یہ کھا لو وہ کھا لو, پھر نہیں کھانا نہیں تم نہیں کھاؤ گی, ہمیں پتا ہے تم نہیں کھاؤ گی. اور پھر وہی چیز جب میں اپنی بیٹی صاحبہ کے ساتھ کر رہی ہوتی ہوں تو پھر مجھے وہ فیلنگز آتی ہیں کہ دیکھو مجھے سب سے میرا پیٹ خالی ہے, مجھے بھوک لگ رہی ہے, اگر وہ نہیں کھاتی. مریم کیا کہو گی, ماما کیوں؟ ماما کا واقعی ایسے ہوتا ہے کہ جیسے صبح میں انسٹیٹیوٹ جانا ہوتا ہے, مجھے صبح اٹھی ہوں تیاری رہی کہ اب آخری ہوتا ہے یا تو کھاؤ گی تو جاؤ گی, نہیں تو نہیں جاؤ گی. اچھا, بڑی آ جاتی ہے. بہت اچھا شعر ہے, کھاؤ گی تو جاؤ گی تو جاؤ گی. صحیح بات. کوئی بھی کام ہے نا مریم کو یہ کہہ کہ انسٹیٹیوٹ کی چھٹی کرنی اگر یہ نہیں کیا تو. اچھا, کسی کہیں جانا ہے کوئی چیز اگر میں کر رہی ہوں تو ماما کی دھمکی ہوتی کام کرو گی یہ والا تو جاؤ گی, نہیں تو نہیں جاؤ گی. اچھا, کھانے کے لیے بھی نکل رہے تھے, ناشتہ نہیں کرنا ہے, نہیں کرو گی نہیں جائیں گے, بیٹھ جائیں گے, پھر جیا انتظار کرتی رہ جائیں گے تمہارا. کچھ لے کے. ہاں. اچھا مریم, کیسے لگتا ہے کہ ماما کیوں ایسا فیل ہوا کہ میرے مارننگ شو کے اوپر آؤ, ماما کے بارے میں بتاؤ. اصل میں نے کل جب شو دیکھا تھا تو اس میں میں نے کہا بے شک سب کہتے ہیں کہ فادر سے بیٹیاں زیادہ کلوز ہوتی ہیں, لیکن یہ فیکٹ ہے کہ بہت ساری باتیں ماما کو بتانی نہیں پڑتی. ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ بتاؤں گی تو ڈانٹنی پڑے, وہ بعد میں پھر ڈائلاگ آ جاتا ہے. اچھا میرے کال لے لوں, پھر آپ کی بات سنتی ہوں. جی السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم, صبح بخیر, گڈ مارننگ. کون ہے ہمارے ساتھ؟ فاطمہ. جی فاطمہ, میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. کیا کہیں گی فاطمہ؟ بہت مزہ آ رہا ہے آپ کے شو پہ, ایسا لگ رہا ہے ہم اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں ایسی فیلنگز آ رہی ہیں. بس آپ کو بھی اپنی کیا کہو گے اپنی امی کے لیے؟ بس بہت ساری باتیں ہیں لیکن کہتے ہیں نا نہیں کہہ جائے, مطلب ایک زبان نہیں, کبھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں کہہ سکتے. بس وہ دل بھر آتا ہے ان کے لیے, جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ دل بھر آتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا جی. اور ان سب ماؤں کو بھی میرا سلام, ان بچوں کو بھی بہت سارا پیار, سلام. تھینک یو.
और सब कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे भी बहुत शौक था आपके शो पे आने का, लेकिन तो फातिमा आओ ना अपनी मम्मा के साथ, मैं तो हमारे तो अभी 2 दिन प्रॉब्लम्स थी, आज के हिसाब से भी मैं नहीं आ सकती, मुझे कॉल आई थी। अच्छा चले सही। थैंक यू सो मच आप लोगों का। अच्छा चले, अपना बहुत सारा ख्याल रखना फातिमा। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। और वाकई माँ एक ऐसी हस्ती होती है जिसके लिए अल्फाज नहीं होता, हमारे कोई अल्फाज नहीं है। क्या चीज सबसे ज्यादा याद आती है अपनी मम्मा की? हर बात याद आती है। हम लोग ना अपनी अम्मी को आपा कहते हैं। अच्छा, अरे ये पहले ये बड़ा होता था, है ना? क्योंकि जो रिश्तेदार साथ रहते थे, अब तो अक्सर घरों में अकेले ही होते हैं। हाँ जी। पहले साथ होते तो जो ज़ाहिर बहन भाई घर में कह रहे हैं वही कहा जाता था, तो इसीलिए हम लोग अपनी अम्मी को आपा कहते हैं। तो ये कि जिस तरह से हर कोई बात होती थी कि आपा ही कहना है। बस सिर्फ मेरी एक छोटी वाली बहन, 2 छोटी बहनें जो अम्मी कहती हैं, हम सब लोग आपा कहते हैं। तो क्या चीज सबसे ज्यादा याद आती है अम्मी की, जो उस वक्त कुछ हर फील चीज में ही जैसे उन्होंने इतना ख्याल रखा, वही जैसे बताया कि वालिद का इंतकाल हो गया था, तो हर मेहनत करना, फिर हर चीज पे नजर रखना, पढ़ाई पे तवज्जो देना कि भाई छुट्टी नहीं करना है, कॉलेज जाना है, पढ़ाई नहीं टूटे, कि भाई किसी भी घर के मसाइल की वजह से। माशाल्लाह सब बहन भाइयों ने, 2 बहनें मेरी लेक्चरर हैं और भाई इंजीनियर हैं, माशाल्लाह सभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। ज़ाहिर है उससे पहले तो बहुत मुश्किलात से ही गुजारा हुआ। पहले हम लोग हैदराबाद में रहा करते थे जब पाकिस्तान आए तो। अच्छा। तो लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह सब परेशानियां गुजर गई। आज उस वक्त ऐसी फीलिंग्स होती थी थी कि अम्मी क्यों कर रही हैं ऐसा, किस लिए कर रही हैं, या ऐसी फीलिंग्स आती थी कि हम लोग, हमारी अम्मी दूसरों की तरह क्यों नहीं अपने आप को अच्छा रखती हैं। ये कभी होता था, लेकिन ये देख के बड़ा एहसास होता था कि अम्मी हमारे लिए ये सब कर रही हैं, क्योंकि मेरे वालिद नहीं थे, पर हम लोग बहनें जो हम ज्यादा आएंगी ना, 6 छोटी बहनें थे हम लोग, तो शादियां ज़ाहिर करनी थी, तो हर चीज के लिए सोचती रहती थी कि ये चीज जमा हो जाएगी, शादी होगी तो ये हो जाएगा। इनके लिए अब मना भी करता है, भाई अम्मी छोड़ दीजिए, ये नहीं कहती ऐसा कैसे, हर चीज। अच्छा, ये तो शादी का तो बहुत होता है ना, जैसे मेरे साथ होता है, मेरी अम्मी अगर कोई चीज, अब तुम वो रख दो, जुमाना के लिए रख दो, तुम अपनी बेटी के लिए रख दो, इवन वो कपड़े साड़ी तुम वो रख दो अपनी बेटी के लिए रख दो। आई मीन क्यों भाई, क्यों रख दे, किस लिए नहीं? हमारी भाई आए हैं सऊदी अरब से ना, तो कोई कपड़े लेके आने, नहीं अभी नहीं पहनोगी, ये रख दो। बाद में काम आएंगे कि नहीं अभी नहीं पहना, हम लोग जिद करते कि नहीं, कहती नहीं अभी तुम्हें पता नहीं है ना, फिर तुम्हें एहसास होगा। हाँ, फिर एहसास होगा जब तुम बड़ी होगी। हाँ मरियम, तो आप बताई थी कि क्यों आपने सोचा कि अपनी मम्मा के लिए बताएं कि मम्मा वर्ल्ड बेस्ट मदर है। बताए, मैं एक बात कह रही थी कि हर किसी से सुनते हैं कि बेटे माँ से ज्यादा क्लोज होते हैं। मेरे भी एक भाई हैं बड़े, तो है ऐसा, लेकिन पापा से वो बातें फिर भी हम नहीं शेयर कर सकते जो मामा से होता है। क्या हाँ होता है यार, मामा को बताओ नहीं बताओ, लेकिन एट द एंड वो मामा ही होती है जिनको बताना नहीं मिल पाती जब तक बताने। हाँ, और मामा को बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती। हाँ, वो पता लग जाता है। हमें आगे से ये आते कि तुम मेरी नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ, बिल्कुल। वो एक्सपीरियंस होती है ना। डांट किस बात से पड़ती है यासिर? लेट आने की वजह से। लेट आने की वजह से। तो ख्याल होता है कि क्यों लेट आते हो? डांटती है? देखिए अब्बू तो इन्हें एकदम से काफ़ी करते हैं, फिर मैं एकदम खाऊं, मैं कहता अच्छा उससे खाना नहीं खाया, रुके पहले खाना खाए। परेशान होते हैं भाई, परेशान होते हैं, हालात कैसे हैं आपको ख्याल होना चाहिए, फिर थोड़ा सा माइक आप करें, फिर थोड़ा सेट हो जाते हैं। हाँ। अच्छा, जब कभी बैठती हैं तो याद आता है अपना बचपन, अपनी बहन भाई माँ? हाँ सब। तो जब होता है ना, जब बहन भाई सब साथ बैठते हैं तो सब ज्यादा बातें होती हैं, और फिर काफ़ी अम्मी की बातें याद करके रोते भी हैं बहनें, और फिर ये होता है अच्छा भाई चले, फिर आते हैं अपनी अपनी फैमिलीज में मगन हो जाते हैं, फिर वही सिलसिले शुरू हो जाते हैं, वही सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वो माँ तो फिर वो ऐसी चीज है ना जो हर वक्त आपके साथ हर वक्त साथ, बिल्कुल आप नहीं भूल सकते उनको, आप उनकी फीलिंग। जब तक हम खुद नहीं मरेंगे हम अपनी माँ नहीं कमी को महसूस करते ही रहेंगे। सही। अच्छा, तो मरियम मुझे बताओ और कि क्या क्यों ऐसा लगता था कि मैं बताऊंगी अपनी अम्मी को कि अम्मी मेरी बहुत बेस्ट है, सबसे अच्छी है? लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि मैं काफ़ी बीमार हो गई थी, तो उसकी वजह से बहुत सारे डॉक्टर्स के पास अब, और तो दूसरों को मैंने एक चीज़ नोट की कि कोई कितना भी आपको क्लोज हो, इवन बहन भाई भी बाजों का थक जाते थे, फील होता था, लेकिन मामा क्या होता था कि नहीं एक लम्हा भी नहीं छोड़ना है। मतलब 6-7 महीने में बीमार रही, तो उसमें मामा साथ सुलाना, साथ रखना। क्या हो गया था मरीम को? मेरे साथ थोड़ा सा इशू आ गया था, मैं असल में लग गई थी मेरे चोट ना, रूहानी इशू थोड़ा सा आ गया था, तो उसमें
तो 6-7 महीने कंटिन्यू मामा साथ साथ के साथ ही सोना है, साथ उठना है। और अब तक ऐसा है कि मैं पहले अकेली हर जगह जाया करती थी बसों में, लेकिन अब तो सवाल ही नहीं उठता मैं कहीं अकेले निकल जाऊं, कोई मामा साथ जाती हैं? मामा साथ हो या कोई। यकीन भी नहीं होता था मरियम को ना, आपका कि मैं माइक मरियम से शायद कि मैं मोहब्बत करती हूँ। अच्छा ये भी होता है, ये मेरे साथ भी था वैसे। अच्छा इत्तेफाक से क्या है, मरियम से छोटी एक बहन है और मरियम से बड़ी एक बहन और भाई है। अब छोटी का तो ये होता है वो छोटी है और इनसे है भी बच्चों में 4-4 साल का गैप है, तो वो ज्यादा छोटी, तो छोटे होने की वजह से ये और उनमें फर्क है, तो जाहिर है उसका वो होता था। ये समझती हूँ शायद मुझे नहीं करती, हर एक को कहती मामा मुझसे मोहब्बत नहीं करती। जब बीमार है ना, जब भी ये कहती पता नहीं मामा को फिक्र हुई थी, पूछ रही छोटी में कि मामा ने मेरे मामा परेशान हुई। हाँ, मामा ने मेरे लिए पूछा ही नहीं पूछा। जब देखा तो फिर समझ में आएगी नहीं, वाकई मामा परेशान। मैं कहा बेटा माँ ऐसी चीज है ये तुम सोच सकती हो कि मामा मोहब्बत नहीं करती है, मामा कहती है। अच्छा, क्योंकि जो मेरे बड़े जेठ और जेठानी थे उनको ये लोग अब्बू और अम्मी कहते थे। अच्छा ये मैं जरूर जानना चाहूंगी, मैंने अभी अपने इंटरव्यू में भी बात की थी कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, जैसे खाला, चाची, मामी, उनको भी हम बिल्कुल मदर फिगर लाइक दे रहे होते हैं, वो भी माओं की तरह होते हैं। उनकी हकीकत में मैं जो मेरी जिठानी इंतकाल हो गया उनका, मेरी जिठानी जेठ दोनों के, लेकिन उन्होंने हकीकत में जो मेरे बच्चों को मोहब्बत की बिल्कुल माँ बाप की तरह। हाँ, ऐसे भी होते हैं वाकई जो बिल्कुल वो मतलब बेटा तो मेरा अभी तक उनकी चीजें याद करके रोने लगता है, वो तो बहुत ही ज्यादा अटैच था उनसे, जेठ और जिठानी दोनों से, और वो भी बहुत ज्यादा करती थी जाहिर माँ की तरह। ये लोग कहते ही थे, एक दफा ऐसे ऑफिस से इनके पापा के पास कोई आए साहब, उन्होंने कहा अब्बू को बुलाए, तो बेटे ने बाहर गया, कहता अब्बू तो गए नहीं। हाँ वो होते हैं। अब वापस आ गए तो फिर गए, तो बाद में उन्होंने कहा पापा से, तो कहते हैं कि वो तो कह रहा था कि तो मैं तो घर में था, तो उन्होंने कहा कि मैंने पूछा था अब्बू, तो कहने अब्बू तो दूसरे, अब्बू तो दूसरे बिल्कुल ऐसे अब्बू होते तो हैं। उनको कहता है वो। हाँ। तो अभी भी रोने लगता है, इतना बहुत ज्यादा जो जिताने में किया, तो उनसे बहुत प्यार था। की तरह बहुत अम्मी अब्बू का ऐसे था कि वो भी, उनके भी 4 बच्चे हैं, लेकिन उनमें और हम लोगों में बहुत डिफरेंस है। अच्छा, तो वो बहुत बड़े बड़े थे जब हम लोग पैदा हुए, तो हम लोगों को बिल्कुल ऐसे रखा जैसे अपने बच्चे हैं, हर चीज। अभी भी उनके घर जाते हैं तो कोई टेंशन नहीं होती कि जो चीजें उठा ली, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने इस तरह से मतलब रखा। हमेशा इस तरह से रखा। और जो कजिन है मेरे, जो उनके बच्चे हैं, वो भी हम लोगों को आज भी ऐसे रखते हैं कि बस जो इन लोगों ने कह दिया वो करना है। जैसे सगे बहन भाई हो, बिल्कुल इसी तरह करते हैं। यासिर और क्या कहना चाहोगे अपनी अम्मी के लिए? बस मैं ये एक मैसेज देना चाहूँगा सब लोगों को कि अपनी माओं की बहुत कदर करें, इस वक्त की बहुत कदर करें जिनकी माएँ हैं, क्योंकि ये वक्त वापस कभी नहीं आएगा, और जितनी खिदमत कर सकते हैं ये और जितनी दुआएं ले सकते हैं। ये इतना अच्छा जो बच्चा बना हुआ है, घर में भी इतना ही अच्छा बच्चा है, जैसे ये यहाँ पे इस तरह से प्रिटेंड कर रहा है कि इतना अच्छा बच्चा है। नहीं, अब वो बात है ना, एक नेचुरल एक्टर की होता है। ओहो, तो तुम एक्टिंग कर रहे हो क्या? नहीं, एक नेचुरल एक्टिंग होती है, एक फीलिंग्स होती है, ये मेरे ख्याल से feelings- ये दिल की बात है जो मैं सबसे शेयर करना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन पता है एक बात, ये भी एक फैक्ट है, मामा की डांट नहीं पड़े तो लगता है दिन नहीं गुजरा। दिन नहीं गुजरा, ये बहुत बहुत नसीब है वो औलाद जो जिसको डांट। तो क्या कहोगे अपनी मम्मा के लिए? एक मैसेज यहाँ पर देना चाहूंगी कि मम्मा सामने ही बैठी हैं, कह दो आज जो दिल में। कि मेरे वर्ड्स नहीं है मेरे पास बोलने के लिए कि मेरी वजह से परेशान ना हुआ करें और अपनी सेहत का ख्याल रखा करें, टेंशन ना लिया करें। टेंशन, एक तो हमारी अम्माएं ना टेंशन भी बहुत ले रही होती है, ये होता है यार बहुत बहुत ज्यादा। ज्यादा। ये मैं तो अपनी अम्मा को कहती टेंशन देगा, टेंशन देगा। माओं के लिए ना ये अफवाह भी माना, हाँ, क्योंकि ये कहना आसान है, लेकिन हकीकत में एक माँ से कर ही नहीं सकती वो चाहते हुए भी, बिल्कुल कि नाले टेंशन ऐसा हो ही नहीं कोई सकता, नहीं। हाँ, जितना टेंशन नहीं चाहे। हर चीज में टेंशन क्यों लेती हैं आप लोग इतनी टेंशन? ये सब बच्चों का सवाल है इन माओं से। माँ है ना, इसलिए मैंने माँ केयर करती है तो टेंशन फिर ला रही है। तो नहीं है ना, और जन्नत अल्लाह ताला ने इसीलिए रखी है माओं के नीचे कि जब आप खिदमत करेंगे तो जन्नत मिलेगी। जन्नत मिलेगी, बिल्कुल जी जन्नत मिलेगी। माँ के कदमों तले जन्नत है, ये हम सब जानते हैं। माँ इतनी खूबसूरत हस्ती है कि जिसके बारे में मेरे ख्याल से मैं तो पूरे साल भी अगर शो करूँ तो मैं हम अपनी माँ के बारे में बात नहीं कर सकते। लाइक मेरी माँ मेरे लिए बेस्ट है, इनकी माँ इनके लिए बेस्ट है, और सारी माएँ बहुत बेस्ट होती हैं। मैं ख्याल से कहीं ना कहीं मैं भी एक माँ हूँ तो मैं भी बेस्ट होगी। हम जाने एक ब्रेक पे, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे सुबह बखैर वाइफ के साथ में, हमारे साथ ही रहिएगा।